Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, at whatever time you are all watching. This is Kusha from the Bespoke Designs, and I am back to celebrate Mother's Day this year. I'm hosting a special Mompreneur Spotlight series and highlighting incredible women who are building businesses while raising families. So, we are interviewing inspiring moms who are coaches, entrepreneurs, and professionals so they can share their stories, their lessons, and wisdom from the journey of balancing motherhood and business. So, let's start and celebrate the strength, ambition, and brilliance of mothers who are building powerful businesses and creating legacies. Today, we have with us yet another amazing guest. Her name is Minakshi Garg. So, Minakshi, first of all, thank you so much for taking time out to join us today. And I'm so glad that after all the tech glitches, we are finally able to roll this and get started. So, Minakshi, before I jump into my questions, would you just give a quick introduction for our audience, please? Thank you so much, Kusha. Thank you so much. First of all, thank you so much for inviting me for this podcast, for this series. I'm really glad that you selected me. Now, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मतलब by qualification, I am an educator, born and brought up in typical middle class बनिया family, जहाँ पे कहा जाता है कि girls के लिए teaching line is the best option. I'm having almost 12 years of teaching experience in different reputed schools of Delhi. And I'm a Okay. certified lifestyle coach, gut health expert, and a fat loss coach. Beautiful. I've done my PG diploma in nutrition and I'm helping people since last more than 8 years. So, Minakshi, I want to straight away jump into my questions and, know more about you and your journey. So, I first want you to share that according to you, what do you think has been this journey really like of motherhood and, entrepreneurship both? It is like kind of emotional journey, Kusha. मतलब everything was doing very well as a normal family. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. Gradually, कभी मदर्स के जब है ना हम जॉब कर रहे होते हैं या फिर है ना हम एम्बिशियस हो तो कई बार हम अपनी हेल्थ को वो हमारी प्रायोरिटी पे नहीं जैसे कि सबने खाना खा लिया लेकिन मेरे लिए नहीं बचा इट्स ओके या मेरे अगर कम खा लिया तो इट्स ओके आई थिंक कुछ ऐसे ही चैलेंजेस मेरे साथ आए एंड आई वाज फेसिंग सम किडनी इशू Okay. and my daughter is a preterm daughter. She is 7th month born. तो I was facing few challenges लेकिन है ना मैंने उसको हमेशा कभी भी seriously नहीं लिया था. But when she was around 10 years old, doctor told me that I have to go for the kidney transplant. Mhm. That was a major setback in my life. घर में खाली तो नहीं बैठना लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है मेरी स्किल्स हैं सारी इन द एजुकेशन लाइन वो मैं आगे नहीं परस्यू कर सकती थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ बट एट दैट टाइम माई डॉटर इज एंटरिंग इन टू हर टीन एज आई एम हैविंग अ 20-year old daughter. आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ. शी इज रियली वेरी स्वीट एंड क्यूट ना. जैसे मतलब कहा जाता है ना जिस तरह की डॉटर्स के लिए सब प्रे करते हैं ना माई ब्लेसिंग की वो मेरे पास है. तो जब मैंने कहते हैं वो 10 years की थी चाहिए था कि मुझे उसे छोड़ के नहीं जाना था. आई डोंट वांट टू Right. लीव हर एंड वांट टू गो फॉर द जॉब. लेकिन क्योंकि मेरे को था कि इसकी टीनेज है तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है मदर की बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन अ बेड रेस्ट आफ्टर द ट्रांसप्लांट समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज द मेजर इश्यूज कौन से रीजंस थे जिस वजह से मुझे इतनी बड़ी चैलेंज आया या क्या कौन से सिम्टम्स को मैंने इग्नोर किया. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल गूगल इंफॉर्मेशन. देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट इट एंड ग्रेजुअली मेरे को उसके अंदर इतना इंटरेस्ट आने लगा और इतना वो बनने लगा मुझे लगा कि कॉमन सिम्टम्स हैं जो कितनी सारी लेडीज को पता ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई जब हम कहते हैं ना कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ देन आई रियलाइज कि एकदम से कुछ था ही नहीं. आई वाज गेटिंग द सिग्नल्स आई वाज गेटिंग द सिम्टम्स बट आई वाज इग्नोरिंग अगेन एंड अगेन ये सोच के कि मे बी आई एम टायर्ड दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग दिस मे बी आई एम वर्किंग दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग दिस या मे बी जैसे हम कहते हैं ना लेडीज में तो हार्मोनल चैलेंजेस होगा चेंजेस होंगे दैट्स Yes. व्हाई आई एम फेसिंग दिस बट वन और द अनदर रीजन एक्सक्यूजेस दिए जा रही थी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करी बिकॉज आई वाज सुपर बिजी इन माय लाइफ. Right. मेरे को पढ़ाना उसका स्पोर्ट्स में फिर उसके साथ अपनी जॉब एंड दैट टू आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली. इन-लॉज Hmm. ब्रदर-इन-लॉ सिस्टर-इन-लॉ कंप्लीट 8 to 10 मेंबर्स वर देयर इन माय फैमिली. तो उन सब के साथ आई वाज फेसिंग सम चैलेंजेस एंड ग्रेजुअली व्हेन आई रेड अबाउट द हेल्थ एंड मुझे पता चला दैट आई एम रियली डूइंग फ्यू मिस्टेक्स. वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एज एन एंटरप्रेन्योर.
जहाँ मुझे वाओ! लगा कि अगर मेरी जैसी लेडी जहाँ जो इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट होम। मतलब अगर कोई भी फ्रूट्स खत्म करना तो मेरा नाम आता, लेकिन स्टिल आई वाज फेसिंग द मेजर चैलेंज। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट अ सिंपल थिंग कि नॉर्मली किसी के येस, साथ फेस होता है। तो देन आई करेक्ट। रियलाइज कि कुछ ब्लंडर्स मैं अपनी लाइफ में कर रही, कुछ साइंस मुझे मिल रहे थे जिसे मैंने नहीं सुना। एंड वहां हुँ, से फिर मेरे को लगा कि इसके लिए तो कुछ मेजर स्टेप्स करने चाहिए, इतना करेक्ट। इंपॉर्टेंट है डाइट एंड न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में। तो आई शुड रीड अबाउट इट। एंड देन आई स्टार्टेड माय सर्टिफिकेशन, माय ग्रेजुएशन, माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द अदर थिंग्स। वहां से एक मीनाक्षी ओके। गर्ग, एक हेल्थ एंटरप्रेन्योर निकल। वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग जर्नी है आपकी, बिकॉज़ इट रिक्वायर्स करेज। कोई अवेयरनेस जब आ जाती है हेल्थ को लेकर, वो अवेयरनेस आपको आपके कुछ लाइफ के ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टांस पे आती है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज कर। तो मुझे लगता है दैट इज़ एग्ज़ैक्टली हाउ आपकी जर्नी रही है। नर्चरिंग योर चिल्ड्रन, रेजिंग योर डॉटर इन द मिडल ऑफ ऑल दैट, maybe even ignoring certain health warnings। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी हेल्थ के, अपने डाइट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉर all the women out there who are watching this, for them this will be inspiring that it is through our life journey, it is through our life experiences only that motherhood gets transformed into making a difference in other people's life, and then we are transforming into becoming entrepreneurs। मैं ये जानना चाहूंगी मीनाक्षी, आपको क्या लगता है कि जब आपको ये बिजनेस अब शुरू, सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपने क्या फेस किया? मैं इसको एज अ चैलेंज तो नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एक लर्निंग जरूर कह सकते हैं। और आई एम हैविंग अ सिंगल डॉटर, तो हर चीज हम्म। है ना उससे ममा क्या करती थी। करेक्ट। So my basic learning is कि my daughter has become independent because of this business, because of this ब्यूटीफुल। ये तो बहुत खूबसूरत बात है मीनाक्षी, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे हमसे, हमारे इतना बोलने, हमारी बातों से या हमारे बोलने से नहीं सीखते हैं जितना हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये स्टेप लेना, अपने लिए एक बिजनेस शुरू करना, इन अ वे ऑल्सो मीन्स दैट यू आर ऑल्सो trying to become independent, you are trying to work on a purpose, and वो ऑटोमेटिकली एक तरह से, मैंने कहा ना, बच्चों को एक रोल मॉडल से उन्हें भी लगता है, एक एक तरह की इंस्पिरेशन कह लो, एक एनकरेजमेंट मिलती है कि जब मम्मा कैन डू इट तो नो व्हाई कांट आई बिकम इंडिपेंडेंट। एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट। मतलब यू आर रियली सेइंग वेरी ट्रू। मतलब माय डॉटर टोल्ड मी दैट थिंग कि मम्मा यू आर माय ट्रू रोल मॉडल। रीजन बीइंग कि या। उसने देखा कि कैसे राइट फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव स्टार्टेड। मतलब आई वाज चेजिंग माय ड्रीम्स एंड शी वाज कंप्लीटिंग हर ओन गोल्स एंड ड्रीम्स। तो समझ में राइट। आती थी वो बात, जो अगर मान लो हमें कोई है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, कहते डिफिकल्टीज आ, तो उसको कैसे कोप अप करना है। वी यूज्ड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद अमंग ईच अदर। तो जब बातें होती पता चलता था तो उसे समझ में आता था कि यस नाउ मम्मा इज स्टार्टिंग इट अगेन, नाउ मम्मा यस, इज यस। वर्किंग हार्ड। अच्छा इस तरह से लर्निंग है ना। अच्छा फिर वही वाली बात होती थी ना कि आई एम रीडिंग माय बुक एंड शी इज रीडिंग हर ओन बुक। तो उससे रीडिंग करेक्ट। स्किल्स में ना मुझे कहना नहीं पड़ रहा था दैट गो एंड टेक आउट योर बुक। बॉन्ड काफी स्ट्रांग हुआ मेरा और मेरी डॉटर के बीच में व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरशिप। है ना, जब मेरी टीचिंग लाइन थी, एजुकेशन लाइन थी, शी वाज नॉट देयर, शी वाज टू यंग, जस्ट अ इन्फेंट, बिकॉज़ आई हैव स्टार्टेड माय एजुकेशन बिफोर द मैरिज एंड एवरीथिंग। तो जब वो जब करेक्ट। तक हुई थी तब तक तो उसने देखा कि मम्मा इज एस्टैब्लिश्ड एज अ टीचर, बट व्हेन एज एन राइट। इंटर सारी जर्नी उसके सामने स्टार्ट हुई, उसको करेक्ट। पता था। तो शी हैज करेक्ट। रियली सीन द जर्नी एंड द होल प्रोसेस। वेरी गुड। बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग जर्नी है। दिस इज रियली वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर ऑल द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस आल्सो टुडे। इनफैक्ट मीनाक्षी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ताकि हमारी जो ऑडियंस है जो सुन रही है, हो सकता है आपकी जैसी कोई और मदर्स हो जो अभी भी थोड़ा सा हिचकिचा रही हो, हेसिटेट कर रही हैं बिजनेस शुरू करने, तो आप उन लोगों को क्या? मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँ, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, जस्ट चेज योर ड्रीम्स। नाइस। कि अपनी लाइफ में उसे किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, व्हाटएवर हूसोएवर इट इज। रियली रियली लास्ट में मतलब ये इट इज अ जस्ट, ये ना एक साइकिल है हमारा इंडियन में, जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारी विमेन है ना, उन सबके लिए कि इन स्टार्टिंग ऑफ द इयर्स वी आर फोकसिंग ऑन आवर पेरेंट्स, देन है ना उसके बाद वी आर फोकसिंग ऑन आवर किड्स, और उसके बाद है ना कहीं घूम फिर के हस्बैंड के आसपास आ जाते हैं, एंड बाय द टाइम हम देखते हैं कि हमने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। और फिर जब लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हमें चुभता है, पिंच होता है। करेक्ट। So करेक्ट। whatever passion you have, whatever you want to do in your life, it is
यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी, दिस इज ब्यूटीफुल। योर स्टोरी। हमेशा हर लेडी को यही कहती हूँ, ये सोचिए कि अगर आपके पास एक ऑथर आती है ना, पब्लिशर आता है और ही वांट्स टू राइट योर स्टोरी, किस तरीके से ना कहते हैं पब्लिश करना, हुँ, उस स्टोरी का राइट। क्या ये कहेंगे कि यस मैं जॉइंट फैमिली में थी या मैंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हुँ, या फिर आप ये कहेंगे कि यस सारे स्ट्रगल सारे ऑब्स्टेकल्स को ऊपर करके I have done my responsibilities, fulfilled all the responsibility, but I made my own identity also. वेरी गुड। क्या या आपका सी बेटा लाइक आई सेड। आपकी रोल मॉडल के लिए औरों की मदर्स की तरफ देख रहा है या आपकी तरफ देख रहा हाँ, है? रियल थिंग आई जस्ट वांट टू से अपना पैशन फॉर चूज ड्रीम, फॉलो योर गोल्स, यस, जस्ट इररिस्पेक्टिव कि लोग क्या सोच रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने तो जो कहना था वो कह चुके। बिल्कुल। नाउ पेन इज इन योर हैंड। यस, करेक्ट। आई लव दिस मीनाक्षी जी। तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि ये आपने जो एडवाइस दी है, ये तो मदर्स की। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी डॉटर के लिए क्या लेगेसी क्रिएट करना चाहते Honestly, I don't want to leave wealth as a legacy. I want to leave health as a legacy. कपूत तो क्यों धन सचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। हैं? चीजें यस, मैं इसको ये समझती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ आज की डेट में आप और मैं हम दोनों मदर्स हैं और हम अपने बच्चों पे इतना लिटरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, यस, वैल्यूज, यस, स्ट्रेंथ, उनको इतना सब कुछ दे, बट हम आप ये खुद ही सोचिए कि बाय द टाइम मे बी आफ्टर 10 years 15 years व्हेन दे बोथ आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना चाह के भी अपनी करियर अपनी गोल्स पे फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड दे आर हैविंग द नोशन कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है, हाउ कैन आई लीव हर अलोन, यस, आई कांट गो यस, आउटसाइड, आई कांट गो फॉर द जॉब वट एवर बेटर जॉब इट इज। हम करेक्ट, अपने बच्चों को कह रहे हैं चेज योर ड्रीम्स, फॉलो योर गोल्स एंड एवरीथिंग, बट बैक ऑफ द टाइम, बैक ऑफ द स्टेज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर ओन हेल्थ। कितनी यस, बार ऐसा होता है कि बच्चों के मेजर इंटरव्यूज होते हैं एंड 1 day बिफोर और 2 days बिफोर मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, आपको हुँ, लगता है ना अपने किसी भी तरह से इंटरव्यूज पे फोकस कर सकते हैं। व्हाट इज द हुँ, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, टाइम, एनर्जी, व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योर किड्स एजुकेशन, बट आपने उसमें करेक्ट, अपनी किड को अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रखा। So I हुँ, really want to leave health as a legacy, and on the other part, I really want to invest on my daughter's health also, so that कि as a यस, mother में हमेशा एक satisfaction है, like my daughter is in the hostel now. मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक satisfaction है, तो whatever environment she is facing, वो उसे स्ट्रगल कर रही है और आपसे लड़ रही है, मुझे उसकी एटलीस्ट हेल्थ की चिंता नहीं है। आई नो शी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, तो एक बहुत बड़ी यस, सैटिस्फैक्शन होती है। वो वाला स्टेज तो निकल जाता है, पढ़ाई के लिए तो हम सिर्फ 12th तक पूछते हैं, हाँ बेटा कितने मार्क्स आए, क्या रहा, क्या नहीं। उसके बाद तो यही रहता है खाना खाया, बाहर जाकर या किसी है ना अच्छी जगह लेकिन वो इसलिए ऑप्ट नहीं करे क्योंकि उन्हें पता है कि आपका ध्यान कौन रखे। ये बहुत ही पावरफुल आई थिंक गिफ्ट है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए फॉर आवर चिल्ड्रन विच इज आवर हेल्थ। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। मैं जाते जाते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपके पास कोई फ्री गिफ्ट है हमारी ऑडियंस के लिए जो आप उनके लिए शेयर करना चाहें? कुशा जी, आई एम अ हेल्थ एंटरप्रेन्योर एंड एज अ राइट। गिफ्ट आई जस्ट वांट, बिकॉज मैंने हमेशा देखा है हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा लेडीज को ही दबाती आई है ना, हम्म। उनके सपने तो बहुत हैं बट वो उनको फुलफिल नहीं करने देती है, बिकॉज उनके साथ कहीं ना कहीं है ना रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, है ना, उनके लिए राइट। डूज एंड डोंट्स बहुत ही स्पेसिफिकली असाइन, पर जितने भी है ना डूज एंड डोंट्स है वो सारी लेडीज के लिए ही है सोसाइटी में। So as a gift, I करेक्ट। just want to say कि as a health entrepreneur, I'm working on the women empowerment. I'm working on the main things कि हाँ भी so that I can make you independent, financially independent. हम्म। I think that can be the हम्म। biggest gift I can ever have give to the ladies कि आप अपने ऊपर अपने सपनों की उड़ान के लिए एक कदम जरूर लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में जो डायरेक्शन है वो आपको डिसाइड करनी है, किसी और को नहीं। क्या नहीं करना राइट। राइट। करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है। जैसे आए ना यहाँ पे थैंक मैं एक यू। छोटा सा एक आपको एग्जांपल बता, मैरिड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल इन माय लाइफ, मतलब जिसे कहते हैं ना सो कॉल्ड कि हाँ जी। हैविंग अ लविंग हस्बैंड, हैविंग अ केयरिंग फैमिली, हैविंग अ क्यूट लिटिल ब्लेस्ड चाइल्ड एंड ऑल इज सब कुछ था। जी। लेकिन तो उस टाइम पे जब मैंने आफ्टर मैरिज जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, करने के बहुत सारे रीजंस थे। डॉटर छोटी हम्म। है, क्या करोगी, जॉइंट फैमिली है, काम खत्म नहीं होगा, है ना, हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न कर तो रहे हैं, तुम्हें जरूरत क्या है किसी चीज की। वो मतलब ना करने के शायद बहुत सारे रीजन थे, लेकिन करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था,
मैं खुश नहीं हूँ, मेरा क्या? हुँ, है हुँ, ना? मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे जो भी मतलब है ना, हमने अपने स्कूल लाइफ में या बिफोर मैरिज बहुत सपने देखे थे। राइट, लेकिन उनको कहीं न शादी के बाद एक लेयर उनके ऊपर चढ़ती चली गई। जैसे कि राइट, शादी से पहले कि हाँ, भई जो सिलेबस होता था कि हाँ, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? लेकिन हाँ, शादी के बाद सारा सिलेबस चेंज हो गया, आप ये बोलते हैं बेटा बनाना क्या-क्या आता है? तो ना अगर आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ तक रहे कि आपका घर बहुत साफ है, आपकी रोटी गोल है, आपको है ना साउथ इंडियन और इटालियन और ये सब खाना बनाना आता है, बिल्कुल, देन कहीं न कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। या आपको लगता है कि यू कैन रियली चेंज others' life, you can really add the values in other lives, then you should connect and join me. I'm really trying very hard to यस, make them independent. कितनी लेडीज़ हैं जो अपने बारे में सोचने के लिए भी गिल्ट लेती हैं। बिल्कुल, हाँ, सही मैंने बोल रहे हैं आप। अपने लिए टाइम क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है। हमारी अपब्रिंगिंग बिल्कुल, ऐसी हमें बताया ही नहीं गया कि हम अपने बारे में सोच के कुछ गलत नहीं कर रहे। सच एवर, व्हाटएवर ड्रीम यू हैव, छोड़ दो अभी के टाइम पे कैसे होगा? सारी चीज़ें आप ही सोचोगे तो फिर दूसरा कैसे सोचेगा? अगर आप भगवान जी पे थोड़ा-सा विश्वास करते हो और आपको लगता है कि भगवान के साथ आपका कोई है ना 36 का आंकड़ा नहीं है ना? वो आपके साथ है, देन स्टार्ट फॉलोइंग। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके बच्चे छोटे हैं देन इट इज़ द राइट टाइम बिकॉज़ सो दैट यू कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम। अगर आपके बच्चे बड़े हैं देन आल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ सो दैट कि आप जो अपने इतने सारे इयर्स आपने है ना कहते हैं वेस्ट कर दिए हैं। आपने मतलब यू हैड रियली गिवन इनफ टू योर सोसाइटी एंड टू योर फैमिली। नाउ गिव टू यस, योरसेल्फ। राइट, कहते हैं ना कि व्हेन यू आर ऑन अ मतलब कहना तो नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई व्हेन आई वाज़ इन आईसीयू आफ्टर द सर्जरी और मुझे ऐसा जी। लग रहा था कि अगर भगवान जी ने मुझे अभी बुला लिया तो कितने सारे चेकलिस्ट में से हाँ, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ अ सडन आई वाज़ नॉट रेडी, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड बट यस, दैट टाइम माय ब्रेन वाज़ वर्किंग बट द बॉडी वाज़ नॉट वर्किंग। उस टाइम पे लगा, हाँ, मैं तो सबको खुश करने में लगी रही, अपने बारे में सोचा ही। सोचा ही नहीं। तो सीरियसली सोचिए, आपके बहुत सपने, बहुत कुछ और अपने नहीं है तो अपने पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए राइट। बहुत देखा। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, इट वाज़ सो अमेजिंग टू टॉक विद यू एंड टू नो अबाउट योर जर्नी। आई एम श्योर जितनी भी लेडीज़ इसको देखेंगी वो आपसे एग्री भी करेंगी एंड आई एम श्योर अगर उनको थोड़ा-सा भी डाउट है अपने ऊपर, आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा और उनमें ये एक हिम्मत, एक करेज जो है वो आ जाएगी कि वो अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचना दोबारा से शुरू करें और जो पुरानी ड्रीम्स उनकी थी, चाइल्डहुड ड्रीम्स उनके ऊपर वापस से इम्प्लीमेंट करें एंड इफ नथिंग एटलीस्ट वो पहला कदम उठाएँ अपने ड्रीम्स I feel this has been a great conversation today, Meenakshi. I am hoping that for all those of you who are listening or watching this today, if you feel, that you are struggling, if you need help, do contact Meenakshi. We will leave the link below the video where you can get in touch with her. So ask her, consult her, and see where you feel stuck. And with that, we have come to an end to our interview for today. So for all of you who have watched this, thank you so much. I will definitely come back with yet another mompreneur guest on this mompreneur spotlight series. Until then, take care. This is Kusha Kalra signing off. थैंक यू कुशा जी।